Let's start banking of road. Banking of road. So as I told you, for banking or to doing a circular motion, for performing a circular motion, we need what? Centripetal force. So here the centripetal force in case of circular driving or circular motion, which provides frictional force. So here think about it. This is what the circular track we are going, right? We have a vehicle. These are the road surface. Suppose right now it is not banked. अभी हमने रोड को बैंक नहीं किया. टर्न ले रहा है रोड हमारा, लेकिन कैसा है? बिल्कुल फ्लैट. At this flat road, flat curve road, ठीक है? Right now, flat curve road. What will happen? We all know that कि जैसे हमारा vehicle आगे बढ़ेगा, suppose the mass of this vehicle is what? M, and this vehicle is moving with the velocity v, and ये हमारा एक circular track है. So obvious सी बात, this is what arc of circle, इसका कुछ क्या हो जाएगा? Radius हो जाएगा. ठीक है? So in this situation, जब हम turn लेते हैं, we are performing circular motion. If there will be no sufficient centripetal force, what will happen? Centrifugal force आ जाएगा. Centrifugal force हमेशा क्या करता है my dear? Acts on an object, and वो हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर लेकर जाता है, away from the center of the circle. So इस तरफ लेकर जाएगा. ठीक है? Centrifugal force. Centrifugal force. Okay. Now, what is the formula of centrifugal force? It is mv square upon r. The formula of centrifugal force and centripetal force both are what? Mv square upon r. M is mass of vehicle, velocity of vehicle, and r is what? Radius of the circular track. Okay. Now remember, think about it. Centrifugal force इसको इस तरफ स्किड करने की कोशिश कर रहा है, इस हमारे vehicle को. We are taking a turn, we feel centrifugal force, स्किड करने की कोशिश करता है. So हमारी vehicle due to centrifugal force इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है. Okay? Which force will prevent this centrifugal force? कौन बचाएगा हमें इस centrifugal force उधर जाने से? Which force? No, centripetal force, no problem. Centripetal force will balance this one, but which provides centripetal force? Friction provide करेगा. And ये आप easily समझ सकते हैं कि friction कैसे provide करेगा? Friction हमेशा अपोजिट मोशन को क्या, मतलब मोशन को, फॉरवर्ड मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी व्हीकल को इस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो इन दिस डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट. फ्रिक्शनल, बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अवे फ्रॉम द सेंटर लेकर जाना चाहता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी व्हाट? टुवर्ड्स द सेंटर. That's why this frictional force is known as what? Centripetal force. So when a car or a vehicle is taking a turn on a circular track, frictional force provide centripetal force. Okay. Now this frictional force depends on what? Frictional force is of two types, na? Self-adjusting and limiting friction. There are two things. So here, what will happen? This frictional force, actually मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट विल हैपन? लिसन टू मी. अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम रहा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट विल हैपन? सपोज बहुत बारिश आ गई, रोड के ऊपर पूरा वाटर जमा है, ऑयल गिर गया, एवरीथिंग, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इन दैट केस सेंट्रीफ्यूगल इज व्हाट? ज्यादा है. सो क्या होगा उस केस में? हमारी व्हीकल इस डायरेक्शन में स्किड कर जाएगी. करेक्ट? So what is the necessary condition for a vehicle to go safely वो turn ले? For that, this frictional force must be greater than or equal to
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा या इसके बराबर होगा, देन हमारी व्हीकल क्या करेगी, शार्प टर्न ले लेगी। अगर ये ज्यादा होगा, व्हाट विल हैपन, दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, इफ दिस विल बी मोर, बॉडी उस तरफ जाएगी, इफ दिस विल बी मोर, बॉडी इस तरफ जाएगी। नाउ यू कांट से दैट कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो हमारी कार इस तरफ चली जाएगी, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इज व्हाट, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। रिमेंबर, फ्रिक्शनल वैरी करते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, बट द केस इज दैट फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अगेन सपोज वी हैव अ रोड है हमारे पास, ठीक है, रोड के ऊपर हमारे एक कार है, कार पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस फ्रिक्शनल, ये हमने लोअर क्लासेस, मतलब सॉरी लोअर में तो किया होगा 9th में आप लोगों ने, बट 11th में भी हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टडी किया था, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू, दिस इज म्यू इनटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन ना सरफेस, रोड सरफेस एंड द क्वालिटी ऑफ टायर, इसके अंदर मतलब, तो म्यू जो है वो चेंज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। सो हियर F is equals to mu n. This normal reaction is also equals to weight of the object. M is mass of the object or vehicle, whatever, and G. So the value of N is equals to what, mg. Therefore F is equals to mu mg. This way we'll put this value over here, is visible, right? So हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, व्हाट विल हैपन, F max की जगह पुट कर देते हैं, इट विल बी व्हाट, म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. सो व्हाट विल हैपन, m to m गेट कैंसल, r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू rg ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर. देयरफॉर आई राइट दिस वे दैट v square is less than equals to, na, v square is what, less than equals to mu r g. Therefore v is equals to less than equals to root over mu r g. So this must be the speed, our speed of the vehicle must be less than or equals to what, mu r g. First of all we have to think about the mu, the condition of the friction, think about the tires, the surface of road, everything. We have to take R. R is what, radius. Is it a sharp turn or a okay turn? ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा शार्प टर्निंग होती है तो रेडियस कम होगा, कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्निंग होती है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, एंड जी विल बी व्हाट, सेम. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज विल गेट द वैल्यू ऑफ v. So this way we have to find out the velocity while taking a turn on a curved flat road. Right now I'm talking about what, curved road है but कैसा है, flat, right? But now the problem is that we have to study about the banking of road, but first we have to discuss about this one. Flat था, that is okay, but in flat curved road we have to always depends upon what, frictional force. Frictional force इससे ज्यादा इसके बराबर है तो हम टर्न ले लेंगे, और इससे कम हुआ तो स्किड हो जाएगा. But does we always rely on frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स कुछ केसेस में क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जो अभी एग्जांपल्स मैंने आपको दी, सपोज कहीं ऑयल का टैंकर पलट गया रोड के ऊपर, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, या हम ऐसे व्हीकल चला रहे हैं सपोज जिसके जो टायर्स है काफी ज्यादा घिस चुके हैं. सो जो नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं, एंड देन फ्रिक्शनल फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल स्किड, एंड देन विल बी चांसेस ऑफ. So we always can't rely on frictional force. है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा. For that we have to think about what, banking of road. So let's start. Now what is the meaning? Now I think you had understand the meaning of banking of road. What we have to do, हमें एक ऐसा solution निकालना है जिससे हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो किस तरफ एक्ट करे, टुवर्ड्स द सेंटर. दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करे या किसी और तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर लें, बोथ आर व्हाट, सेम थिंग. हमें तो चाहिए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड. ओके.